Good morning, students. Today I am sharing the video in which you will learn about chapter 3 of social and political life, that is, why do we need a parliament? Students, watch the video and understand the lesson properly. Let us see the topics which I will discuss with you. Functions of the Parliament. It includes to select the national government, to control, guide and inform the government, lawmaking, and who are the people in the Parliament. Student, in previous virtual class, we discuss why do we need a parliament. Students, we need a parliament. It enables citizens of India to participate in decision making and control the government. Today we will discuss the functions of parliament. Student, parliament consists of president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Students, how do national government formed? For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. MP means member of parliament. Students, whole country is divided into constituencies. चाहे स्टेट के इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शंस हो, कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है. जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 constituencies. Students, since there are 543 elected members in Lok Sabha and 2 are nominated by Anglo-Indian community by the president. जो बाहर की कंट्री के लोग हमारी कंट्री में रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए, जिन्हें यहाँ की सिटीजनशिप भी मिली हुई है, उनके वेलफेयर के लिए प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं. वो इलेक्ट होकर नहीं आते. 543 इलेक्ट होते हैं, जिससे हमारी कंट्री के लोग जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर्स और अबव है वोट डालकर इलेक्ट करते हैं, और 2 पर्सन्स को हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से. स्टूडेंट, टू मेक अ नेशनल पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी हैव अ मेजॉरिटी, a party should have at least half the number, that is 272 members or more. 543 का हाफ करें तो 272. नेशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी को? कम से कम 272 उनके एमपीस इलेक्ट होने चाहिए. स्टूडेंट्स, often times in the recent past it has been difficult for a single party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form. So what is known as coalition government. जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो दूसरी पार्टीज की हेल्प से जो सरकार बनाते हैं उसे मिली जुली सरकार कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. बेटे ये टेबल भी दी गई है, इसे आप देखिए. सी दी टेबल, इट शोज द लोकसभा 15th रिजल्ट ऑफ 15th लोकसभा इलेक्शन. यहाँ पर सबसे ज़्यादा एमपी इलेक्ट हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और सेकंड नंबर पर जो पार्टी है जिसे ज़्यादा एमपी इलेक्ट होके आए हैं बीजेपी. अब 206 वाली पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती क्योंकि उसके पास 272 से मेंबर्स कम हैं, तो वो 5 और पार्टीज़ की हेल्प लेती है, जैसे बीएसपी, सीपीआई, टू मेक दी गवर्नमेंट. इस गवर्नमेंट को हम कहते हैं
कोलिशन गवर्नमेंट, और इस ग्रुप का नाम है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और जो ओपोजिशन में जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है उसे हम कहते हैं ओपोजिशन पार्टी, और बाकी सारी मेजोरिटी के अगेंस्ट जो दूसरी पार्टीज हैं उन्हें हम कहते हैं ओपोजिशन। स्टूडेंट्स, one of the most important function of Lok Sabha is to select the executive. Who are executive? Executive is a group of person who work together to implement the laws made by the parliament. इसमें हमारे मिनिस्टर्स और IAS इंक्लूड होते हैं। The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. From the MPs who belongs to her party, the Prime Minister select ministers. Students, from the MP who belong to her party, Prime Minister select ministers to work with her to implement these decisions. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, home, etc. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह को सिलेक्ट किया एज अ होम मिनिस्टर और राजनाथ जी को डिफेंस मिनिस्टर बनाया। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम एक्सप्लेन टू यू अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा, the main function of Rajya Sabha is to represent the state in the parliament. Rajya Sabha can initiate legislation and a bill is required to pass through Rajya Sabha in order to become a law. कोई भी बच्चों कानून बनता है तो राज्यसभा और लोकसभा में से बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर वो उसे साइन करते हैं और वो बिल लॉ बन जाता है। तो लॉ बनाने के लिए बिल का राज्यसभा में से भी पास होना जरूरी है। The member of राज्यसभा are elected by the elected member of legislative assemblies of various state। जैसे हम लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बेसिस, पर्सन हु आर 18 ईयर एंड अबव 18 ईयर्स कैन गो फॉर वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। पर राज्यसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता। हम स्टेट के लिए जो MLA इलेक्ट करते हैं उन्हीं में से ही कुछ को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पार्लियामेंट में भेज दिया जाता है। जिस स्टेट का साइज और पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान। अगर स्टेट छोटा है, वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, तो उस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कम जाएंगे, जैसे गोवा और सिक्किम। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आर पार्लियामेंट इज टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। स्टूडेंट, द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिन विद क्वेश्चन आवर। समर सेशन, विंटर सेशन में पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या काम हुआ और आगे आने वाले टाइम में क्या करना है। द क्वेश्चन आवर इज बिगिन R is an important mechanism through which MPs can get information about the working of the government. This is a very important way through which the parliament control the executive. Students, जब मिनिस्टर्स से उनके काम के बारे में पूछा जाता है पार्लियामेंट में, तो उन्हें डर रहता है कि हमें अपना काम सही ढंग से करना चाहिए। अगर हम अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर पाए तो हमें रिज़ाइन भी करना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम लोग हमें इलेक्ट भी नहीं करेंगे। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ इम्पोर्टेंट टास्क फॉर एवरी MP की ड्यूटीज़ बनती है कि वो गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में मिनिस्टर से पूछें। द ओपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। ओपोजिशन पार्टी ऑब्जर्व करती रहती है कि सरकार अच्छे से काम कर रही है या नहीं। वो इस ताक में भी रहती है कि अगर इन्होंने गलत काम किया तो हम लोगों के सामने लाएंगे और अगली बार लोग हमें पसंद करेंगे और हमें इलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग। कोई भी नया कानून
की ज़रूरत है। तो पहले पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में, फिर वहाँ डिस्कशन होगी। जब वोटिंग में मेजोरिटी से पास कर देंगे तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में डिस्कस होगा। फिर उसके बाद जब वोटिंग होगी, अगर वो मेजोरिटी से पास हो जाता है तो फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों से बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो बिल हमारा लॉ बन जाता है। इस तरह से लॉ बनाना भी पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। स्टूडेंट, हु आर दी पीपल इन दी पार्लियामेंट? पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट background. For example, there are some rural members and also from many regional parties. हमारे यहाँ पार्लियामेंट में डिफरेंट रीजनल पार्टी से, रूरल एरियाज़ के भी बहुत से लोग हैं। देयर हैज़ आल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित एंड दी बैकवर्ड क्लासेस Student, see the table. It shows people participation in Lok Sabha election. In first Lok Sabha election, 61.16% people votes were given by these people. In sixth Lok Sabha election, 60.49% votes people give their vote to elect their representative. People participation in all these elections remain 50 to 70%. So it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of a society. अगर सभी लोग जाएंगे, वोट देंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो परफेक्ट रिफ्लेक्शन होगा सोसाइटी का। अगर 60% वोट दे रहे हैं, 70% वोट दे रहे हैं, तो बाकी लोगों ने तो अपनी चॉइस रिप्रेजेंट ही नहीं की कि वो इन्हें पसंद करते हैं तो नहीं। अगर सभी वोट देंगे तभी हम कहेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव है परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट कम्युनिटीज दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड आर गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वुमेन्स हैं, जिन्हें पहले पार्टिसिपेशन की परमिशन नहीं थी, अगर उनके लिए सीट्स रिजर्व होंगी तो वो अच्छे से अपने बारे में, अपने ग्रुप के बारे में बता पाएंगे, उनके लिए लॉज भी बनाने में हेल्प करेंगे। सो some seats are reserved in parliament for scheduled caste and scheduled tribe. This has been done so that MPs elect from these constituencies will be familiar with and represent the Dalit and Adivasis interest in the parliament. Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. Students, 60 years ago only 4% of MPs were women and today it is just 11% women. So this is a small share in parliament. Student discussion and debate is going on this issues कि क्या वुमेन्स के लिए भी सीट्स रिजर्व करनी चाहिए. So we can ask these questions and are working towards answer is a reflection of the strength and the faith that people of India have in democratic form of government. Students, we can ask the questions from the ministers and about their working. So if we are not satisfied with the working, people have the power to change the government, control the government. That is why student parliamentary form of government is important. Student, I hope all the topics are clear to you. Student, you will get the worksheet which is based on the understandings of the topics. So do the worksheet and send to us according to your given schedule. Students, stay at home, stay healthy, keep learning. Thank you. Have a nice day.